अच्छा, चलो। इसमें कोई भी किसी और के जहन में कोई सिनेरियो हो तो वो बता सकते हैं। एनीवन, कोई भी सिनेरियो, वरना मैं बता दूं कोई खुद से बना के। जी सादिया। Yes, madam. ओके, चलो। बेसिकली अ प्राइमी ग्रेविडा who is 29 years old, married for last 2 years, and otherwise there is no comorbidity, and so far her pregnancy was uneventful. She comes to antenatal clinic at 31 weeks of pregnancy, rather 32 weeks of pregnancy हम कह सकते हैं, and on examination, otherwise vital signs are मैडम आपकी आवाज normal. कट रही है। मैडम आपकी आवाज, आवाज कट रही? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही, आवाज कट रही है। सबको ऐसा ही है? हेलो। नहीं मैम आपकी मैडम, आवाज साफ आ बिल्कुल रही है। क्लियर है। मैडम आपका बिल्कुल इंटरनेट क्लियर है। ठीक है? डॉक्टर अच्छा, मेरा सादिया का ख्याल है प्रॉब्लम बेटा हो रहा आपका कुछ नेट का शायद इशू ना हो, क्योंकि बाकियों कुछ ठीक आ रही है। एक सेकंड, एक सेकंड। यस मैडम। ठीक है। तो जी प्राइमी मैम। ग्रेविडा एट 32 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी विदाउट एनी अदर रिस्क फैक्टर कम्स इन एंटीनेटल clinic for routine checkup, and on examination her symphysiofundal height was found to be 29 centimeter. यस मैम। इस केस को लेके चलें। ओके, प्राइमरी ग्रेविटा। मैम स्ट्रक्चर डिस्कशन। हाँ जी, स्ट्रक्चर डिस्कशन। I will introduce myself to the patient and confirm the information given to me, then ask about the missing biodata, the name of the patient, education, occupation, and her. I would like to know about her last menstrual period for the exact period of gestation and estimated date of delivery, and also would like to know about her regularity of cycle. Then as my patient came at 32 weeks of gestation of pregnancy, I would like to know about whether she came with any complaint or came for a routine antenatal visit. How is the growth of the abdomen according to the patient? How is her fetal movement? Whether she has any history of raise in blood pressure in the pregnancy? Any history of excessive leaking in the pregnancy? Any history of bleeding? Any previous family history of structural abnormalities and chromosomal abnormalities? And any history of previous history of diabetes, hypertension, SLE, APLS, thrombophilias, thyroid disorder, and cardiac diseases? Any previous history of excessive exercises? Any history of use of cocaine, alcohol, smoking, and any history of use of medication like NSAIDs and beta blockers? And I would like to know about uh, when how she conceived, whether it was spontaneous or assisted conception, how the pregnancy was confirmed, any history of fever, flu, rash, folic acid intake in the first trimester of the pregnancy, and whether she has any history of excessive nausea and vomiting in the first trimester, whether at the her dating scan at 12th week was done or not, and when she felt her fetal movements. And also, I would like to know about her anomaly scan at 18 to 21 weeks was done or not, and what she told about that. And her OGTT was done or not at 24 to 28 weeks of gestation. And what investigation done up till now, what treatment she has taken. Also, I would like to take about past gynecological history, regularity of cycle pap smear report, her past surgical history and history of previous surgeries and how was the recovery, and personal history of medical comorbidities and family history of medical comorbidities, any drug allergies, any use of medication, and how was the social support at the home. I'm done with my history. ओके, इसमें और भी कुछ रिस्क फैक्टर आप ऐड करना चाहोगे? मैडम मेरे जहन में तो यही थे। ओके, और इसमें LMP कोई ऐड करना चाहेगा? LMP का मैडम दोबारा रिकन्फर्म करेंगे। हाँ, वो इन्होंने कर लिया था, वो जी इन्होंने मैम, कर जी। लिया था। और इसमें एक और होता है कि आपने इसमें एपीएच की हिस्ट्री, अर्ली जो प्रेगनेंसी, कोई स्पॉटिंग, ब्लीडिंग, इस तरह की चीजें भी आपने पूछनी होती हैं। अब ऑन हिस्ट्री, she gives history of use of antidepressants off and on,
और इसके अलावा she gives history of one episode of bleeding while she was at 11 weeks of pregnancy, and this was settled on medicine. Okay. यानी आगे चलिए फिर। Then I would like to do her examination. First, I will do her general physical examination, in which I would like to calculate her body mass index with the help of height and weight, her blood pressure, pulse temperature, Bell's cyanosis, jaundice, any enlargement in the thyroid, and also her abdominal examination, first inspection for the shape of the abdomen and any scar marks, and then बेटा medical आपकी ना कुछ आवाज बीच में रेजोनेट कर रही है, अपनी साइट पे जरा चेक कर लीजिए। Hello. हाँ जी जी जी। भी है मैम। चलो ठीक है, चले। असल में पता नहीं है, आवाज आ रही है मैम, कहीं और से है मुझे लगता है ये। मैडम वो दूसरों लोगों के ना माइक ऑन है, काइंडली अच्छा आप हाँ, बंद कर मेरा दें। ख्याल है बाकी सबको जरा अपने माइक्स जरा चेक कर लें, क्योंकि फिर उसे डिस्टरबेंस बहुत होती है। जी बेटा कंटिन्यू रखें। Yes, ma'am, I would like to do her general examination. General physical examination, in which I would like to calculate her body mass index with the help of height and weight, her blood pressure, pulse rate, temperature, Bell's cyanosis, jaundice, any enlargement in thyroid, and then her abdominal examination, first inspection for the shape of abdomen and scar marks, and then obstetrical examination for the symphysiofundal height, lie, presentation, estimated fetal weight, clinically estimated Likert volume, and fetal heart sound. ओके अच्छा, और सिम्फिजियो फंडल हाइट आपने एस्टिमेटेड फीटल वेट देखा, फीटल हार्ट साउंड्स देखे, व्हाट एल्स? सिम्फिजियो फंडल हाइट और किस चीज में कम हो सकती है? मैम मिस्टेकन एस्टिमेटेड फीटल वेट, मैम लाइकर वॉल्यूम भी चाहिए मुझे। लाइकर ठीक है, वो तो आप एक अप्रोक्सीमेटली बता देते हो ना कि उसमें क्लिनिकली असेसमेंट होती है। और फीटल मेल प्रेजेंटेशन, इफ इट्स ट्रांसवर्स लाई तो उसमें फंडल हाइट लाई कम है, प्रेजेंटेशन। ठीक है। हालांकि फीटल लाई अदरवाइज इज नॉट इम्पोर्टेंट एट दिस जेस्टेशन, लेकिन जब आप रीजंस फॉर रिड्यूस सिम्फिजियो फंडल हाइट आप उसमें इवेलुएट करते हैं तो दिस इज वन ऑफ द रीजंस, ठीक है। चलो अब और आगे इसमें क्या, अब आगे कैसे आप प्रोसीड करेंगे? मैम एग्जामिनेशन ठीक है। मैडम रिसेंट ऑब्स्टेट्रिकल स्कैन भी देखेंगे ना अभी, तो हम्म हिस्ट्री है, तो अभी प्लेसेंटा की लोकेशन देखेंगे। ओके। मैम तो इन्वेस्टिगेशन ये बेटा किसी का माइक ऑन है, वो जरा प्लीज अपना करेक्ट कर लें, ठीक है। अच्छा, इसका जो अल्ट्रासाउंड होता है उसमें फीटल बायोमेट्री कोरेस्पॉन्ड्स टू, अगरचे एग्जाम में आपको बेसिकली फीटल बायोमेट्री इस तरह जेस्टेशनल एज कैलकुलेट नहीं करके दी जाती, बल्कि इसमें आपको बताया जाता है कि बीपीटी कितना है, फीमर लेंथ कितनी है, एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस कितना है, उसकी मेजरमेंट्स दी जाती हैं। तो fetal biometry corresponds to 29 weeks of pregnancy, rather 28, 29 weeks of pregnancy. AFI is 11 centimeter. Placenta is located anteriorly. And what else? आपको information क्या क्या चाहिए थी अल्ट्रासाउंड पे? on ultrasound I would like to know about her biometry. हाँ, ये तो मैंने आपको बता दिया ना जो आपने पूछा था, और भी कुछ चाहिए होगा? प्रेजेंटेशन मैम, प्रेजेंटेशन। Presentation is cephalic. ओके लाइकर वॉल्यूम मैडम, ये कौन बोल रहा है? Likert volume is 11. मैम fetal heart sound। That is normal. Okay, ma'am, 2 weekly growth scan if available. What? क्या आपने कौन सा स्कैन पूछे? Ma'am, growth scan. ग्रोथ स्कैन नहीं, वो अवेलेबल नहीं है। Okay, ma'am, umbilical artery Doppler for SD ratio and diastolic flow. Umbilical artery Doppler is 4 and diastolic flow is normal. ठीक है। Okay, madam. I will consult the couple regarding the diagnosis that most probably she is a case of intrauterine growth restriction.
I will explain the maternal and fetal complication. Maternal complication, the mother is at increased risk of iatrogenic preterm delivery, increased risk of cesarean section, and fetus is at increased risk of preterm labor, unexplained IUD, and neonatal complication of hypoglycemia and hypomagnesemia and hyperbilirubinemia. And also, I will involve I will manage the patient in liaison with neonatologist and anesthetist. I will manage the patient on the outpatient outpatient basis. I will her antenatal visit should be done on twice weekly basis. Her umbilical artery Doppler should be done on twice weekly with her with CTG. Umbilical artery Doppler will be performed Twice weekly, ma'am. 2 times per week. twice a week. Okay. And her growth scan should be done on 2 weekly basis. And ultrasound for AFI and fetal well-being should be done on 1 weekly basis. If yes, madam. ओके अब ये 2 हफ्ते के आपने 1 हफ्ते के बाद इसका करवाया डॉपलर आफ्टर 1 वीक her ST ratio now is 3.8 AFI is 10 and the 2 weeks growth scan shows increase in BPD of 2 millimeters. Yes, madam. Ma'am, again, I will ask the patient to come for follow-up after 1 week. And again, her umbilical artery Doppler should be done. And then after 2 weeks, her growth scan again should be done. I will continue this pregnancy with the proper counseling and counsel the patient to be vigilant for fetal movements. So you will again put her on the serial visits. ऐसे ही है Yes, madam. Yes, कि madam. उसको आपने serially जो है वो evaluate करना है. After Yes, 2 weeks. No, ma'am. Umbilical artery Doppler after 3 days and growth scan every 2 weekly. Umbilical artery Doppler after 3 days. Yes, madam. Okay. तो 3 days के बाद आप करते हैं तो umbilical artery Doppler आ जाता है 3.5. But the AFI has reduced more. यानी वो हो जाता है तकरीबन 8. And she now is at 35 weeks of pregnancy. Because after 32, we have gone almost 3 weeks. Yes, madam. Ma'am, then I will again counsel the patient that about the maternal and fetal complication, and I will counsel the patient that I will plan her delivery at 37 weeks of gestation after doing her pelvic assessment. At 37 weeks after doing her pelvic assessment and her providing the fetal and doing ultrasound for fetal well-being and also confirming the fetal position. मैडम इस पेशेंट को मॉनिटर करें ना हम मैडम इस पेशेंट को एडमिट करके इसको मॉनिटर करें फॉर फीटल मूवमेंट्स और ये भी हम आते हैं ना. देखो सबसे पहले तो लेट हर स्पीक आउट व्हाट शी थिंक्स अबाउट द केस. तो उसके बाद जो है वो इसमें डिस्कशन इसमें हम बाद में करेंगे ताकि इनका जो 10 मिनट्स का टाइम है वो हम पूरा कर लें. ठीक है. तो इसमें जो बाकी आप लोगों की जो सजेशंस हैं वी विल लुक इनटू दैट. तो इसमें आपने 37 वीक्स पे इसको इंड्यूस कर दिया ऐसा ही है आफ्टर असेसमेंट ऑफ द बिशप स्कोर. एंड हियर योर केस एंड्स. क्या इसमें और कुछ आप बताना चाहोगे? बस मैडम. ओके. तो इसमें अब हम आते हैं इसमें जो आपने हिस्ट्री पे पॉइंट्स पूछे दैट वाज ओके. इसमें कुछ और चीजों को ऐड करके अदरवाइज देयर वाज नो प्रॉब्लम क्योंकि जो भी रिस्क फैक्टर्स उसमें हो सकते हैं चाहे पेशेंट का हमने बताया था कि इसमें कोई कोमॉर्बिडिटी नहीं है अकॉर्डिंग टू द पेशेंट एज गिवन एज नरेटेड बाय द पेशेंट. लेकिन फिर भी आप जब इसमें दोबारा से डिस्कस करते हैं आप कंफर्म करते हैं हमेशा डेट विच इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिक्रीज्ड फंडल हाइट. और उसके बाद फिर आपने बाकी सारी कॉजेस को रूल आउट करना है. उसमें फैमिली हिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, उसकी पर्सनल हिस्ट्री, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है. अब उसके बाद जब एग्जामिनेशन पे आपने ये देखा उसमें भी कोई बहुत ज्यादा ऐसी लंबी चौड़ी चीज नहीं थी. और सिम्फिजियो फंडल हाइट की जो एस्टिमेशन है उसमें क्या कंफाउंडिंग फैक्टर्स क्या हैं दैट यू शुड नो. उसकी सेंसिटिविटी कितनी है, स्पेसिफिसिटी कितनी है और इसके अलावा कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी मौजूदगी में सिम्फिजियो फंडल हाइट मेजरमेंट बिकम्स मोर कंट्रोवर्शियल. तो वो चीजें भी आपको पता होनी चाहिए.
तो आगे क्योंकि अगर इस पेशेंट का BMI बहुत ज्यादा हो तो फिर हम Yes, कह ma'am. सकते हैं कि इसमें प्रोबेबली हम उस तरह से मेजर नहीं कर सकते, और उसमें उसकी नॉर्मल उसकी फीटल पोजीशन है, लाई है, सब कुछ ठीक है, और बट द सिम्फिजियोफंडल हाइट इज less than almost 4 weeks less than the actual duration of pregnancy. Now coming to the evaluation, which is the most important segment of this case, and that starts from the counseling. और काउंसलिंग में आपने पेशेंट को ये बताना है कि apparently there seems to be no reason for this reduced fetal growth, but what you have to differentiate now is the constitutionally small for gestational age baby or some fetal growth restriction. As we get the ultrasound और उसमें Doppler flow raised है, तो Doppler flow raised होने के भी कुछ physiological factors होते हैं, like when the uterine tone is increased, जैसे कोई अगर फर्ज किया कोई contraction wave उस वक्त आई है तो उसमें वो रेज हो सकता है, and sometime temporarily when the patient is under stress, या उस वक्त अगर उसका BP रेज था temporarily under stress तो भी उसमें रेज आ सकता है. So we have to keep in mind that factor. Otherwise, if all the fetal biometry parameters are in correspondence with each other, like head circumference, which is more basically valid parameter as compared to the BPD, तो वो consistently correspond कर रहा है gestation wise femur length के साथ और abdominal circumference के साथ, और उसमें जो लाइकर वॉल्यूम है that may be and may not be normal, क्योंकि लाइकर वॉल्यूम की कम होने की फिर और बहुत सारी वजह होते हैं, तो still you can not differentiate between the small for gestational age and the fetal growth restriction unless you do certain more evaluation. But can you offer some treatment right at this first visit? क्या हम उसको कुछ कह सकते हैं? नहीं मैम, ट्रीटमेंट तो कोई नहीं ये देंगे, जो बस हमारे पास 32 वीक्स पे आई थी, क्या मैम हम स्टीराइड कोई एडवाइस देंगे या नहीं देंगे? क्योंकि हमने उसको सिर्फ अभी तक इवेल्युएशन पे रखा है, हमने सीरियल मॉनिटरिंग पे रखा है, वी हैव नॉट ऑफर्ड हर एनी ट्रीटमेंट टिल नाउ, हम उसको कुछ नहीं कर रहे, यस मैम तो क्या हम स्टीराइड कुछ इसमें ऑफर कर सकते हैं? स्टीराइड कवर मैम, स्टीरॉयड कवर हम बिल्कुल देंगे, और बाकी जो हमारी इवेल्युएशन तो जो चल रही है सो चल रही है, लेकिन पेशेंट के एंड पे भी ये सब चीजों का जैसे फीटल मूवमेंट चार्ट है वो उसने मेंटेन करना है, स्टीरॉयड कवर हम उसको देंगे. इज देयर एनी रोल ऑफ हेपरिन और एस्पिरिन? 32 वीक्स की है. मैम नो मैम with the एस्पिरिन आफ्टर first ultrasound report showing the Doppler flow of 4, मैम आई क्या उसमें कोई रोल है? नहीं मैडम, मेरे ख्याल में तो नहीं है. बाकियों का क्या ख्याल है? After the completion of second wave of trophoblastic invasion, there is नहीं no नहीं role बेटा, of हम उसके पैथोलॉजी में नहीं अभी जा रहे, लेकिन क्या इसमें एस्पिरिन का एट शी इज राइट नाउ एट 32 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, तो क्या इसमें कोई एस्पिरिन का या क्लेक्सिन का रोल है? नो मैडम, कोई रोल नहीं है इस नहीं, वक्त 32 एस्पिरिन वीक्स का रोल नहीं है, और क्लेक्सिन हम सिर्फ उस वक्त देते हैं when persistently there is problem in the Doppler flow studies, but not for small for gestational age or for fetal growth restriction. उसमें उसका कोई रोल नहीं है, वो उसकी ग्रोथ को बढ़ाता नहीं है. ये तो है कि उसमें डॉपलर फ्लो अगर प्रॉब्लम वो हो गया तो उसमें तो हम डॉपलर फ्लो के लिए तो दे सकते हैं, एंड हेपरिन कैन बी स्टार्टेड एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी. एस्पिरिन का देने का एक टाइम होता है जहां पे उसकी इफेक्टिविटी ज्यादा होती है. सो इन द वेरी हाई रिस्क केसेस, यानी जिनमें क्रॉनिक हाइपरटेंशन हो या जिसमें टाइप 2 डायबिटीज है या जिसमें कोई क्रॉनिक रीनल प्रॉब्लम्स हैं, ये सब चीजों में हम उसको एस्पिरिन 12 वीक से शुरू कर देते हैं, और इफ पॉसिबल बिफोर 20 वीक्स, तो तब उसका रोल होता है, अदरवाइज मिड वे कहीं जाके नहीं होता. क्लेक्सिन का कोई रोल ऐसा सच नहीं है, सिर्फ डॉपलर फ्लो के लिए, वो भी अगर रिपीटेड उस पे आता है और बढ़ता जाता है तो सिर्फ एक सिंगल रीडिंग पे आप उसको नहीं दोगे.
सो व्हाट वी आर लेफ्ट विद इज स्टेरॉइड कवर, और पेशेंट को हमने अदरवाइज जो है वो उसको काउंसल भी करना है, उसको सारे रिस्क फैक्टर्स बताने हैं, एंड व्हाट शी हैज टू केयर फॉर, यानी फीटल मूवमेंट चार्ट, ये सब कुछ उसने करना है, और किस सूरत में उसको फौरी तौर पे आ जाना चाहिए। सो देन कमिंग टू द सीरियल, जो हम आगे ग्रोथ को एक असेस कर रहे होते हैं। अब इन्होंने हमें ये बताया कि 1 वीक के बाद मैं डॉप्लर फ्लो करूंगी। डू यू ऑल एग्री विद दिस? मैम twice weekly Doppler. The Doppler flow is 4 and there is no the end diastolic flow is normal. क्या इसके साथ भी twice a week आप नो करोगे? मैम, जब नॉर्मल होता है इसके फिर हम साथ ट्वाइस नहीं। वीकली नहीं करते। जब एंड डायस्टोलिक फ्लो में कोई इश्यू आता है तो फिर ट्वाइस अ वीक और इवन ऑन ऑल्टरनेट डेज। लेकिन अगर वो नॉर्मल आ गया और एसटी रेशियो 4 है तो फिर उस सूरत में आप इसमें ट्वाइस अ वीक करने की जरूरत नहीं है। एट द मोस्ट यू कैन डू इट आफ्टर 1 वीक जस्ट टू बी सर्टेन ऑफ कि ये वाकई जो पहली रीडिंग थी वो ठीक थी या नहीं ठीक थी, क्योंकि एक रीडिंग पे आप उस तरह फाइनली कंक्लूड नहीं करते हो चीजें। लेकिन एक चीज जो इसमें बहुत जरूरी है वो ये कि जब आप अपना डिसीजन इन चीजों के ऊपर बेस करते हैं, यानी आपने फीटल बायोमेट्री पे बेस किया, और इसके अलावा इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी वो था एस्टिमेटेड फीटल वेट, जो इन्होंने नहीं पूछा। दैट इज अनदर मार्कर फॉर, क्योंकि अब जो हम ग्रोथ चार्ट के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो वी हैव टू लुक इनटू के ये 10th सेंटाइल से नीचे है या 3rd सेंटाइल से नीचे है, उसकी सिग्निफिकेंसी फर्क हो जाती है, क्योंकि स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज कैन बी बिलो 10th सेंटाइल, लेकिन जो 3rd सेंटाइल से नीचे है वो डेफिनेटली फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन है। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है। तो एस्टिमेटेड फीटल वेट जो है वो पूछना बड़ा जरूरी होता है। तो अच्छा इसको जो मैडम ये जी जो आप कह रहे हैं 3 सेंटाइल से अगर कम हो तो ये तो मैडम सीवियर एफजीआर में आ जाता है, तो ये फिर यहाँ पर एसपीआर में डेफिनेटली आ जाता है। हाँ, अब तो मैडम यहाँ पर इसमें जो टॉर्च बेसिकली भी लेनी हाँ पड़ेगी ना, या बेसिकली स्टेरियोटाइपिंग का भी पूछना पड़ेगा बच्चे का, वो ये सारा सारी। कुछ हाँ हाँ। लेकिन इसमें अगर हम 28 वीक्स की सम फिजियोफंडल हाइट दे रहे हैं और 32 वीक्स की उसकी एक्चुअल प्रेगनेंसी है, तो इसमें जहां पे हमने एलएमपी पूछा ना, देखो एलएमपी हम पूछते हैं तो उसके साथ हमेशा मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलरिटी पूछते हैं। वन ऑफ माय पेशेंट जिसको जो प्राइमी ग्रेविडा थी और उसके साथ जब मैंने उसको एलएमपी पूछा तो एलएमपी उसने बता दिया। अब यूजुअली हम एज्यूम कर रहे होते हैं कि पेशेंट कंसीव कर गया महीने के बाद ही, शादी के महीने बाद ही, तो साइकिल आई मिस्ड दैट थिंग टू आस्क। तो जब उसके बाद मैंने उसका एलएमपी पूछा और उसके बाद मैंने अगला सवाल नहीं पूछा, तो उसके हस्बैंड ने कहा कि डॉक्टर इसका तो पीरियड हर 4 महीने के बाद आते हैं, एंड दैट वाज रेगुलर, उसका पैटर्न था सिंस हर मेनार्की। सो आई फेल्ट सॉरी फॉर माई सेल्फ कि मैंने उसका ये मैंने क्वेश्चन क्यों मिस कर दिया कि रेगुलरिटी ऑफ साइकिल क्या है। सो वेन एवर यू आस्क अबाउट द एलएमपी तो 2 चीजें जरूर पूछें। एक तो ये कि बाद दफा एलएमपी हम पूछते हैं ना लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड क्यों हुए थे, पेशेंट की परसेप्शन है वो इसको फर्स्ट डे भी कह सकता है लास्ट डे भी कह सकता है, और अगर उसका 1 वीक का है तो वो 1 वीक का डिफरेंस तो वहीं आ जाएगा। तो उससे पूछो कि क्या उस दिन पीरियड स्टार्ट हुए थे, और फिर ये कि कंसेप्शन से पहले उसको साइकिल रेगुलर था या नहीं था। तो ये 2 चीजें मस्ट टू आस्क जब भी आप एलएमपी की बात कर रहे होते हैं। तो ये है। अब उसमें जो 3rd सेंटाइल जब हम इस तरह के कहते हैं ना कि अगर मैं इसमें फीटल वेट सपोज बहुत कम दे दूं तो उसका मतलब है कि ये जो ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन है ये अभी की नहीं है, ये अर्ली ऑनसेट है। और अगर इसमें मैं 10th सेंटाइल का दे दूं तो फिर भी मेरा फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन वाली चीज उसमें जस्टिफाई नहीं होती, because still it can be a case of constitutionally small baby where all the parameters are in line with each other, like BPD जो है वो तकरीबन 1.8 सेंटीमीटर जो है वो जो फीमर लेंथ है वो 1.8 सेंटीमीटर ज्यादा होती है बीपीडी से एट एनी जेस्टेशन। अलबत्ता बीपीडी की मेजरमेंट becomes a little bit more controversial as the gestation passes by।
तो ये जो उसमें डिफरेंस है, जो कोरिलेशन है बिटवीन द एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस बीपीडी और हेड सर्कमफ्रेंस एंड ऑफ दिस जो है फीमर लेंथ और एस्टिमेटेड फीटल वेट, ये आप पूरा ग्रोथ चार्ट पे प्लॉट करते हो एंड देन यू सी कि ये इसमें उस पे सेंटाइल का पता चल जाता है कि ये लोअर में आ रहा है या अपर में आ रहा है या मीडियन में आ रहा है। तो वहां से हमें पता चल जाएगा मोर देन 10% सेंटाइल है तो उसमें फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन तो नहीं होती, वो कॉन्स्टिट्यूशनली स्मॉल अमूमन होते हैं, बट स्टिल यू कैन नॉट से डेफिनेटली बिकॉज एट 32 वीक्स जो अगर अगर अब 32 वीक्स की हम क्यों करते हैं, क्योंकि इससे ये डिवीजन लाइन है बिटवीन द अर्ली ऑनसेट एंड द लेट ऑनसेट। अब हमारे पास पेशेंट अगर आई पहली ही दफा 32 वीक्स पे और उसका ये इट रिमेन अनआइडेंटिफाइड टिल नाउ, तो ये अर्ली ऑनसेट भी तो हो सकता है, ये लेट ऑनसेट भी हो लेट ऑनसेट तो अभी हम नहीं कह सकते क्योंकि ऑलरेडी अगर इसमें है तो ये 32 वीक से पहले का चल रहा है। तो इसलिए हमें उसका पिछला हमें रिकॉर्ड नहीं पता अनलेस के वो कहीं पे दिखाती रही और उसका वो सारा प्लॉट हुआ हो। तो मैनी थिंग्स हैव टू बी रूल्ड आउट इन दिस केस, क्योंकि हमें बहुत सारी चीजों का सिनेरियो का पता नहीं होता। पेशेंट एज इज अ नॉन टेक्निकल पर्सन, तो वो खुद से भी उस तरह कॉन्फिडेंटली नहीं बता सकती सिवाय अपने रिस्क फैक्टर के या बाकी चीजों के। तो इसलिए इसमें जो है वो हमने इसके वेट को, फीटल वेट को, बाय डिटरमिनिंग ऑन द इनिशियल अल्ट्रासाउंड वी विल प्लॉट इट ऑन द ग्रोथ चार्ट। अब ये जो ग्रोथ चार्ट होते हैं ये कस्टमाइज्ड ग्रोथ चार्ट्स होते हैं। कस्टमाइज्ड का मतलब है अकॉर्डिंग टू अ सर्टेन पॉपुलेशन, तो उस पॉपुलेशन के हिसाब से ग्रोथ चार्ट पे प्लॉट करेंगे और सीरियली हम उसको करेंगे एंड डेफिनेटली वी विल लुक इनटू द डॉपलर फ्लो स्टडीज जो कि ग्रेजुअली सेटल करती इसमें। बट स्टिल एट 36 वीक्स जो फीटल डॉपलर फ्लो अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर फ्लो है इसका वो 3.5 इज ऑन हायर साइड, क्योंकि जो डॉपलर फ्लो अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर फ्लो में जो चेंजेस आती हैं जेस्टेशन वाइज, उसमें प्लेसेंटल फंक्शन, प्लेसेंटल परफ्यूजन इंक्रीजेस स्टेज टू स्टेज, और इसके अलावा उसमें एसटी रेशो इफ इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज 4, इन सेकंड ट्राइमेस्टर इट शुड बी 3 एंड इन थर्ड ट्राइमेस्टर इट शुड बी 2। एग्जैक्टली इट कैन नॉट बी एट दिस पॉइंट, लेकिन हम इसमें तकरीबन 4 अगर ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में है तो इट शुड बी बिटवीन 3 to 4 इन सेकंड ट्राइमेस्टर, इट शुड बी बिटवीन 2 and 3 इन द थर्ड ट्राइमेस्टर। तो इसकी सिर्फ ये रेंज होनी चाहिए। सो स्टिल इट इज ऑन अपर लिमिट, so it means that there is some placental dysfunction going on, though there is increase in the fetal biometry। अब थर्ड ट्राइमेस्टर में जो हेड सर्कमफ्रेंस या फीमर लेंथ एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस में क्या चेंज आनी चाहिए दैट यू शुड नो। एक तो ये कि जेस्टेशन वाइज जो फीटल बायोमेट्री होती है उसके पैरामीटर्स क्या होते हैं, बीपीडी के, फीमर लेंथ के, एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस के और हेड सर्कमफ्रेंस के भी, और इसके अलावा जो मिडिल सेरिब्रल आर्टरी फ्लो है उसका भी, और डॉपलर फ्लो का भी, और एस्टिमेटेड फीटल वेट ऑन अल्ट्रासाउंड उसका भी। ये सब चीजें पता होनी चाहिए, ओनली देन यू कैन कमेंट ऑन द फाइंडिंग्स गिवन ऑन अल्ट्रासाउंड। अब इसमें अगर प्लेसेंटल डिस्फंक्शन का जो सिनेरियो हमने डिस्कस किया कि ये 4 थी, फिर उसके बाद 3.8 होगी, फिर 3.5 हो गई, तो अभी भी ये ज्यादा है। तो sorry क्या ma'am, कोई प्लेसेंटल डिस्फंक्शन चल तो नहीं रहा, क्योंकि हम ये नहीं, और उसको कोई भी और हाइपरटेंशन नहीं है। अभी तक हमने इसको बहुत सिंपल रखा हुआ है केस को कि उसमें हाइपरटेंशन नहीं है, कुछ नहीं है। ओकेजनल यूज ऑफ एंटी डिप्रेसेंट था जो इतना इफेक्ट नहीं करता, और कहीं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जाके इसको 1-2 दिन के लिए ब्लीडिंग हुई विच वाज सेटल्ड ऑन द ड्रग्स। तो बहुत ऐसा कोई रिमार्केबल इसका रिस्क फैक्टर नहीं है। तो इस सूरत में इसलिए देयर इज सम प्लेसेंटल डिस्फंक्शन गोइंग ऑन। और ये भी देखें कि अगर फर्ज किया, इसमें तो खैर हमारी फंडल हाइट कम ऑलरेडी पता चल गई थी, तो इसलिए हमने इसको सीरियल एवेल्युएशन पे रखा। तो इसमें लेकिन लाइकर भी कम होता जा रहा है, विच इज अगेन रीइंफोर्सिंग द डायग्नोसिस ऑफ सम प्लेसेंटल डिस्फंक्शन गोइंग ऑन। इज देयर अ रोल ऑफ यूट्राइन आर्टरी डॉपलर इन दिस केस? क्या हम इसमें यूट्राइन आर्टरी डॉपलर करवाएं? मैडम वो 18 to 23 वीक्स पे अगर हम मैम करते अर्ली तो जेस्टेशन पे करवाना चाहिए था, अभी तो पेशेंट बहुत एडवांस एज में जा चुकी है, तो हाँ,
कोई इसलिए कि अब नहीं, अब तो हमें अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर भी हमें पता चल गया कि ये हायर साइड पे है। हम सिर्फ यूट्राइन आर्टरी डॉपलर हम जाहिर है 18 to 20 वीक्स तो करवाते ही हैं, 24 वीक्स तक करवाते हैं, और हाई रिस्क पेशेंट्स में हम फिर 28 वीक्स पे करवाते हैं। और जहाँ पे हाई रिस्क परसिस्ट कर रहा है मैटरनल फैक्टर, वहां पे हम 32 वीक से ऑनवर्ड भी करवा रहे होते हैं, 32 वीक्स पे 36 वीक्स पे, फॉर स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ द केस। एंड सपोज, और लेकिन जहां पे ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है वहां पे उसका फिर कोई रोल नहीं आ जाता, ठीक है। तो इसलिए जो है वो इसमें हमने अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर पे डिपेंड किया। अब एंड डायस्टोलिक डॉपलर फ्लो रेस था, हमने एंड डायस्टोलिक फ्लो करवाया इनिशियली, अब जो कि नॉर्मल था। अब सपोज मैं सिनेरियो में ये दे दूं, क्योंकि अगर तो डॉपलर आर्टरी अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर ठीक आ रहा है, उसको बेहतर हो रहा है, और एंड डायस्टोलिक फ्लो भी ठीक हो रहा है, तो सिचुएशन इज नॉट दैट वर्स। बट सपोज आई से कि ये एक हफ्ते के बाद अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर इज स्टिल 4, लेकिन एंड डायस्टोलिक फ्लो जो है वो उसका एब्सेंट हो गया, देन व्हाट वुड बी योर लाइन ऑफ एक्शन? अब इसका मतलब है चीजें वर्सन हो रही हैं, तो उसमें लाइन ऑफ एक्शन क्या होगी? Ma'am, then daily Doppler. Absent, Ma'am, यानी first admit the patient and then do daily Doppler study. एब्सेंट के साथ हम फिर ऑल्टरनेट पे करते हैं, ठीक है। और जब रिवर्स हो जाए तो फिर उसके बाद आपने डक्टस विनोसिस के साथ करना है, क्योंकि जहां पे एंड डायस्टोलिक फ्लो में प्रॉब्लम आ जाता है, देन यू हैव टू गो फॉर द वीनस स्टडीज, वीनस फ्लो स्टडीज, ठीक है। फिर डक्टस विनोसिस का रोल आ जाता है टिल 37 वीक्स ऑफ जेस्टेशन। What is the role of cerebral blood flow? Sorry ma'am, ma'am ductus venosus तो हम 32 तक नहीं करते। नहीं, देखो डक्टस विनोसिस जो है ना, ये बेसिकली प्री टर्म में मिडिल सेरिब्रल आर्टरी फ्लो का रोल नहीं होता, क्योंकि वो Yes, ma'am. जेस्टेशन वाइज बढ़ रहा होता है, उसमें फॉल्स पॉजिटिव आने के रिस्क होते हैं। मिडिल सेरिब्रल आर्टरी फ्लो की प्रैक्टिकेबिलिटी आती है आफ्टर 37 वीक्स, लेकिन डक्टस विनोसिस फ्लो हम करते हैं इन मतलब 37 वीक्स तक हम डक्टस विनोसिस पे ज्यादा डिपेंड करते हैं। और डक्टस विनोसिस जो है या वीनस फ्लो स्टडीज जो हैं वो बेसिकली ये उस वक्त हम कर रहे होते हैं जब एंड डायस्टोलिक फ्लो में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाए, टू फर्दर स्ट्रेटिफाई द केस। यानी हमने उसकी जो स्वेरिटी ऑफ सिचुएशन असेस करनी है वो हमने फिर उसकी डक्टस विनोसिस स्टडीज के ऊपर करनी है। तो ये प्री टर्म में यानी टर्म तक जाते जाते ये हम डक्टस विनोसिस पे ज्यादा डिपेंड करेंगे, क्योंकि इसकी सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी ज्यादा है। But after the term, middle cerebral artery flow will be more informative. Unless के इसमें देखो जो इंक्रीज करता है ना, ये खास तौर पे 30 से 34 वीक्स तक मिडिल सेरिब्रल आर्टरी फ्लो का इंक्रीज मैक्सिमम होता है। लेकिन कभी अगर ये जैसे रिसस इनकम्पैटिबिलिटीज हैं या फीटल एनीमियाज हैं लाइक इन पार्वोवायरस इन्फेक्शंस, वहां पे मिडिल सेरिब्रल फ्लो इज मोर देन द नॉर्मल फॉर दैट जेस्टेशन, उसमें भी हम मिडिल सेरिब्रल आर्टरी फ्लो कर रहे होते हैं, हालांकि वो प्री टर्म होता है, लेकिन उसमें एक जो उसकी लिमिट है फॉर दैट जेस्टेशन ऑफ मिडिल सेरिब्रल आर्टरी फ्लो वो उससे बहुत ज्यादा रेज्ड होगा, एंड दैट इज अ कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म फॉर फीटल अनीमिया। मतलब वो उसमें बढ़ रहा होगा, एक ब्रेन स्पेयरिंग इफेक्ट होता है उसका मिडिल सेरिब्रल आर्टरी फ्लो का, तो वहां पे इसकी एप्लीकेबिलिटी आ जाती है। फॉर फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन इसकी एप्लीकेबिलिटी नहीं है। तो ये जो है ये इसको आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि प्री टर्म में आप डक्टस विनोसिस, और इसमें सिर्फ 32 वीक्स तक नहीं होता, ये 32 वीक्स के बाद भी आप कर सकते हैं वेयर द थिंग्स आर वर्सनिंग, जैसे इस केस में कि अब एंडास्टोटिक फ्लो जो है वो भी हो गया, और उसमें डक्टस विनोसिस आपने कर लिया और उस वो वाली स्टडीज, और उसके बाद फिर आपने मिडिल सेरिब्रल आर्टरी फ्लो का अभी इसमें रोल नहीं आएगा, बिकॉज द केस इज नॉट ऑफ कार्डियक कॉम्पनसेशन जो कि फीटल सिवियर फीटल एनीमिया में होती है। तो रीजन जो है वो उसकी फर्क है, ठीक है। तो अब इसलिए जो है वो इसमें अब बेसिकली अब इसमें जो चीजें डिस्कस करने वाली होती हैं वो यही कि कोई भी सिनेरियो कोई भी हो सकता है कि बहुत अर्ली जेस्टेशन में आ जाए। अब जो बहुत हम अर्ली टाइम पे डिटेक्ट कर लेते हैं,
यानी बिल्कुल जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर और उसमें अब कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो मल्टी ग्रेविडाल, उनके जो हैं वो प्रीवियस हिस्ट्री बैड ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री होती है, या उसका प्रीवियस आईयूडी बेबी, या उसका प्रीवियस जो है वो बहुत ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड बेबी हो, वहां पे तो हम शुरू कर देते हैं ये एवेल्युएशन इवन एट 12 to 14 वीक्स ऑफ जेस्टेशन। और वहां पे हम जो है वो यूट्राइन आर्टरी डॉपलर फ्लो के साथ पहले देख रहे होते हैं, और उसके बाद फिर जो एनॉमली स्कैन के साथ हमने कंबाइन करना होता है, वो सारा कुछ हम कर रहे होते हैं। अब इसमें जो अगर फर्क किया है कि बाज़ दफा आपने देखा होगा, अगर चाहिए बहुत कम है, अर्ली ऑनसेट हमेशा कम होता है, लेकिन अगर आपको बहुत अर्ली जेस्टेशन पे पता चल जाए, सपोज पेशेंट इज एट 24 वीक्स, लेकिन उसकी फंडल हाइट आप देखते हैं तो मुश्किल से 18 या 20 वीक्स होती है, तो वहां पे आप जो है देयर इज हाई रिस्क ऑफ फीटल एनॉमलीज, तो वहां पे क्रोमोसोमल एनॉमलीज को जो है वो ज्यादा, क्योंकि देखो अर्ली ऑनसेट जो है ना वो अमूमन, अब जो सेकंड वेव ऑफ इन्वेजन है वो तकरीबन 20 वीक्स पे जाके शुरू होती है, उसके बाद प्लेसेंटल परफ्यूजन का असल काम तो उसके बाद होता है, सेकंड वेव ऑफ इन्वेजन के बाद, और चीजें उसके बाद गड़बड़ शुरू हो जाती हैं। अगर कोई PIH है, हाइपरटेंशन है, उसे प्लेसेंटल डिसफंक्शन हो गया, विच इज बेसिकली अ सीक्वल ऑफ दैट इम्परफेक्ट सेकंड वेव ऑफ इन्वेजन। और जो वैसे ही जो एसेंशियल हाइपरटेंशन है, प्री एग्जिस्टेंट हाइपरटेंशन है, वो अदरवाइज वेस्कुलर पैथोलॉजी की वजह से कर रही होती है अर्ली ऑनसेट IUCR। तो वहाँ उन केसेस में आप हाई रिस्क में या पास्ट हिस्ट्री हो या प्रेजेंट हिस्ट्री हो, इन सारी चीजों के ऊपर बेस करते हुए 14 हफ्ते पे यूट्राइन आर्टरी डॉपलर, 18 to 20 वीक्स पे यूट्राइन आर्टरी डॉपलर, इवन 24 वीक्स पे आप यूट्राइन आर्टरी डॉपलर करते हैं, एंड इफ on symphysiofundal height and on fetal biometry there is severe IUGR, fetal growth restriction है, तो फिर हमें इसमें invasive studies करनी पड़ती हैं to detect the fetal anomalies, chromosomal anomalies, जिसमें aneuploidies are more common, but there is the risk of some perinatal infection as well, तो वो भी हम उसको जो है उसकी स्टडीज कर सकते हैं। तो क्योंकि उनकी भी ट्रीटमेंट है कि वैसे जो टॉर्च इन्फेक्शन है वो भी एक बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, तो उसको भी किसी वक्त टच कर लेंगे। तो बहरहाल ये, और जी सॉरी मैम डिस्टर्ब कर रही हूँ मैम, जैसे आपने दिया SD रेशियो 4 है लेकिन डॉपलर फ्लो नॉर्मल है, इसमें ट्वाइस वीकली हम डॉपलर करेंगे? नहीं, एंड डायस्टोलिक फ्लो नॉर्मल है, डॉपलर फ्लो नहीं, एंड डायस्टोलिक फ्लो नॉर्मल है। इसमें Yes, हम ma'am. वीकली करेंगे, जब एंड डायस्टोलिक फ्लो एब्सेंट आ गया ट्वाइस अ वीक, इवन आप उसको ऑल्टरनेट डे पे भी कर सकते हो, एंड व्हेन एंड डायस्टोलिक फ्लो इज रिवर्स्ड, फिर आपने डेली, और उसके साथ डक्टस विनोसिस स्टडीज, ये एक सीरियल है, आप सारी चीजें एक ही वक्त में नहीं कर रहे होते, तो स्टेप बाय स्टेप है। मैम यानी गाइडलाइन में लिखा हुआ है कि SD रेशियो +2, व्हेन SD रेशियो इज 2+, देन ट्वाइस वीकली डॉपलर, फिर इसका क्या मतलब नहीं, है? SD रेशियो 2+, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? 2+ मतलब जाहिर है इसमें थर्ड ट्राइमेस्टर में तो 2 होती ही है, बट बिटवीन 2 and 3 इज कंसिडर्ड टू बी नॉर्मल, यानी वो 2 to 3 वाली वेरिएशन होती है, उसमें एग्जैक्ट कोई 2 वाला मार्कर उस तरह से नहीं होता। एक्चुअली जब हम ये फर्ज किया जैसे इसमें 4 थी, तो उसमें डेफिनेटली हमने एंडास्ट्रोलिक फ्लो को जरूर देखना है, और अगर वो नॉर्मल है, मैंने बताया ना कि बाज़ दफा टेम्परेरी फिनोमेना ऐसे होते हैं जो SD रेशियो को इस 40% इज द फॉल्स पॉजिटिव रेट इन SD रेशियो मेजरमेंट। अब इसमें जो बहुत ज्यादा जो एक क्राइटेरिया है टू बी फॉलोड, इसके जब आप ये सारी चीजें मेजर कर रहे होते हैं ना, तो 100% इनकी रिलायबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि आप सारा डिसीजन उस पर बेस कर रहे होते हैं, ऑनवर्ड एवेल्युएशन उसके ऊपर बेस कर रहे होते हैं। तो इसमें अब ये देखो कि इसमें इंटरपर्सनल वेरिएशंस क्या हैं। 40%, इफ 40% इज द फॉल्स पॉजिटिव रेट ऑफ SD रेशियो, तो डेफिनेटली अगर 2 से 2.5 होगी, तो क्या आप उसमें ट्वाइस अ वीक करना शुरू कर दो? वी डोंट डू दिस नोवेयर इन दिस इन एनी सेटअप, ये कर सकते हैं, मतलब क्योंकि वो तो अगर उनकी गाइडलाइन के मुताबिक देखो, तो वो तो अल्ट्रासाउंड भी बड़ी मुश्किलों से कुछ इंडिकेशन पे किया जाता है, ऐसे नहीं है कि जैसे हम हर दफा पेशेंट आया तो अल्ट्रासाउंड कर लिया, ऐसा नहीं होता, कोई इंडिकेशन होती है। 32 वीक्स के भी सारी चीजें नॉर्मल आ गई, फिर आपने 36 वीक्स पे करना है, दरमियान में भी नहीं करना।
तो इसलिए अगर एसटी रेशो इसकी 2+ पे हम उस तरह से ट्वाइस अ वीक हम नहीं कर रहे होते, अनलेस एंडास्टोलिक फ्लो में कुछ मसला हो या कोई बहुत ज्यादा कोई ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाती है, पेशेंट प्री एक्लैम्पशिया में चला जाता है, या और कोई ऐसी मैटरनल रिस्क फैक्टर्स हमें आइडेंटिफाई हो जाते हैं which are very considered to be very important causes for fetal growth restriction. क्योंकि बाद दफा 32 वीक्स पे भी ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन का नहीं पता चलता, जब हम लेट इन द थर्ड ट्राइमेस्टर करवाते हैं तो वहां पे चीजें हमें गड़बड़ पता चलती हैं। 32 वीक्स पे तो तकरीबन 60% लेट ऑनसेट IUGR का पता चलता है, जो कि बढ़ जाता है मजीद व्हेन यू डू स्कैनिंग इन द लेटर इन द जेस्टेशन। तो इसलिए जो है वो इसमें हम ट्वाइस अ वीक अगर यहीं से करना शुरू कर देंगे तो फिर सोचो ना उसकी मॉनिटरिंग कहाँ पे चली जाएगी। मैम इस पेशेंट में एंड हम लॉन्ग टर्म एडमिशन इन द वार्ड, ये इसकी एक बड़ी स्ट्रॉन्ग वजह होनी चाहिए, वो आप ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें पेशेंट को आपने 8 हफ्ते हॉस्पिटल में कैसे रखना है, उसके अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं बहुत सारे। ठीक है, हाँ जी जी पूछिए। मैडम जब एब्सेंट हो जाए या रिवर्स हो जाए फिर तो हमें एडमिट करना है ना पेशेंट को, जी जब जी एब्सेंट बिल्कुल, हो उस पे तो इस पे तो आपने करना है, लेकिन अगर और मैडम नॉर्मल जब रिवर्स हो जाए मैडम तो जो फिर जैसे आपने दिया अब देखो 33 ना, वीक आपने एक हफ्ते के बाद रिवर्स हो इसका गया। एक हफ्ते के बाद आपने रिपीट करवाया, उस पे अगर जी बढ़ गया है गो फॉर द फर्दर स्टडीज, और उस पे कुछ मसला आता है एडमिट देयर एंड देन, बिकॉज देन यू विल प्लान अकॉर्डिंगली टू डिलीवर हर अब टाइमिंग ऑफ डिलीवरी विल बी डिपेंडेंट ऑन द फीटल पैरामीटर्स एंड द मैटरनल रिस्क फैक्टर। अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन नहीं कंट्रोल हो रही तो आप उसको, जाहिर है उसका भी टाइम ऑफ डिलीवरी आप उस हिसाब से डिसाइड करती हो, या अगर फीटल पैरामीटर वर्सन होते हैं तो भी आप टाइम ऑफ डिलीवरी उस पर वो करते हो। एंड डायस्टोलिक फ्लो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, आप उसमें सीधा सीधा सिजेरियन सेक्शन पे लेके चले जाते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप उसको नॉर्मल लेबर की ट्रायल दोगे तो उसमें एक मॉडरेट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन में 40% ब्लड सप्लाई, यूट्रोप्लेसेंटल ब्लड सप्लाई कम हो जाता है। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड डॉपलर, उसमें फीटल डिस्ट्रेस होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। So in that case, you won't give any trial to the patient, rather you will go for the elective cesarean section. ठीक है, सॉरी मैम, जी आप जरा इसमें कुछ सवाल कर लें। यस हाँ मैम, जी मैम एंडास्टोलिक फ्लो इज रिड्यूस्ड, हाँ जी, तब भी हम इसको ट्रायल ऑफ लेबर नहीं दे सकते? देखो अगर तो एब्सेंट और रिवर्स्ड नहीं है तो यस मैडम। फिर आप दे सकते हो, बट विद 1-to-1 मॉनिटरिंग एंड लो थ्रेशोल्ड फॉर सिजेरियन सेक्शन। खाली अगर फर्ज किया डॉपलर फ्लो ठीक है, ओलिगोहाइड्रेमनियोस है, तो उसमें बनता नहीं है। ठीक है, और इसलिए जो है वो उसमें डॉपलर फ्लो स्टडीज पे, बट डॉपलर फ्लो स्टडीज बहुत करेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि आपका सारा डिसीजन उस पर बेस करता है। जो इंटरपर्सनल वेरिएशंस है ना, कहीं से कुछ और रिपोर्ट आ जाती है, कहीं से कुछ और रिपोर्ट आती है, दैट बेसिकली obstetrician को भी कंफ्यूज करती है, एंड दे आर नॉट इन अ पोजीशन टू मेक अ डेफिनेट डिसीजन अबाउट मोड ऑफ डिलीवरी, टाइमिंग एंड मोड ऑफ डिलीवरी। ये दोनों चीजें बहुत वाइटल हैं, और उसके लिए हमें बहुत करेक्ट जो है वो ये सारी डॉपलर फ्लो स्टडीज चाहिए होती है। ठीक है मैम एक जी। तो क्वेश्चन था मैडम ये आपने सिनेरियो दिया कि ये आपने जो सिनेरियो दिया हम इसको एसडीए पहले समझ रहे थे, हम डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे थे जब तक आपने एसडी फिर से वर्सन कर दिया, तो मैडम इसको कैसे बिल्कुल, हम इसमें टैकल करें? बेसिकली एसटीए को एफजीआर से डिफरेंशिएट करना एट टाइम इज नॉट पॉसिबल। एज अ जनरल रूल एसजीए जो है वो लेस देन 10 सेंटाइल हो सकता है, लेकिन लेस देन 3 सेंटाइल एसजीए नहीं होता कभी, वो हमेशा एफजीआर होता है। लेकिन एफजीआर जो है वो 10 सेंटाइल से नीचे हो सकता है, सो 10 सेंटाइल से नीचे एसजीआर भी हो सकता है, और एफजीआर और एसजीए दोनों हो सकते हैं। So what thing will differentiate between these two will be the serial growth scan, estimated fetal weight, and the fetal biometry, and the Doppler flow studies, of course. But Doppler flow study is not always compromised in FGR. तो इसलिए इसको जरा डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा सा बाद दफा मुश्किल हो जाता है, लेकिन जो जनरली स्पीकिंग जो हम करते हैं, अब एफजीआर जो है उसमें ग्रोथ स्लो हो रही है। ठीक है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनली स्मॉल नहीं है,
लेकिन जो FGR है उसमें अमूमन एक क्रॉनिक हाइपोक्सिया वाली स्टेट होती है ड्यू टू एनी रीजन, मे बी प्लेसेंटल डिस्फंक्शन, मे बी सम मैटरनल फैक्टर्स और द फीटल फैक्टर्स, लेकिन उसमें अमूमन इट इज कंबाइंड विद ओलिगोहाइड्रामियोज। और इसके अलावा जो फीटल बायोमेट्री है दैट इज नॉट कोरिस्पॉन्डिंग विद ईच अदर, उनका इंटर रिलेशनशिप कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, यानी उसमें एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस कम होएगा फॉर दैट जेस्टेशन। लेकिन इसमें ब्रेन स्पेयरिंग इफेक्ट होता है कि इसमें हेड सर्कमफ्रेंस या ज्यादा कॉमनली जो हम BPD कर रहे होते हैं वो अमूमन नॉर्मल आ रहा होता है और फीमर लेंथ भी नॉर्मल है। सबसे पहले जो चीज कॉम्प्रोमाइज होती है वो एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस ही होता है। तो ये कुछ पैरामीटर्स होते हैं कि जिसमें हमें डिफरेंशिएट हम करते हैं बिटवीन FGR एंड द कॉन्स्टिट्यूशनली स्मॉल बेबीज, SGA। अब SGA जो है अमूमन चूंकि वो क्रॉनिक हाइपोक्सिया नहीं होता, वो दैट इज बेसिकली डिपेंडेंट अपॉन द पेरेंटल फैक्टर्स एंड द फीटल फैक्टर एज वेल। अब एक ही तरह का सिनेरियो होता है, न्यूट्रिशन भी एक ही जैसी होती है, एनवायरमेंटल फैक्टर भी एक ही जैसे होते हैं। एक का बच्चा बिल्कुल ठीक साइज का होता है, एक का छोटा होता है विदाउट एनी पैथोलॉजी। तो इसलिए जो है वो उसको उसमें अमूमन क्रॉनिक हाइपोक्सिया ना होने की वजह से उसमें लाइकर भी ठीक होता है और उसमें डॉपलर फ्लो भी मसला नहीं होता और उसमें BPD, फीमर लेंथ एंड एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस सारी चीजें आपस में कोरिलेट कर रही होती हैं फॉर दैट जेस्टेशन टाइम पीरियड। ठीक है मैम मेरा क्वेश्चन था कि मतलब जो हम लेट एक ऑनसेट ही साइड नहीं करेंगे। जैसे आपने जी ये सिनेरियो दिया तो उसमें मतलब जैसे मैडम आपने ये सिनेरियो दिया तो हमने AC को पहले देखना था उसके सीरियल ग्रोथ स्कैन पे, हाँ जी क्योंकि हाँ जी। आपने फर्स्ट क्लियर इसमें कट हमने इसको नहीं सीरियल देखा ग्रोथ था। स्कैन ही करनी थी, अभी हमें कुछ पता नहीं था कि ये क्या है, अभी हमने इसको देखना था आगे जाके। ठीक है ना, कि इसकी सीरियल ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही, जो ST रेशो ज्यादा आ गई ये मजीद वर्सन हो रही है या ठीक हो रही है। ठीक होना उसका थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पॉइंट डेफिनेटली था, लेकिन इसका ये मतलब था कि इनिशियली जो है वो करेक्ट नहीं थी रिपोर्ट। तो इट वाज बेटर विद द पैसेज ऑफ टाइम दो AFI वाज रिड्यूस्ड। ठीक है, क्योंकि आखिर तक पहुंचते पहुंचते भी उसकी ST रेशो वाज रेज्ड फॉर दैट जेस्टेशन टाइम पीरियड। अब 36 वीक्स पे जाके डेफिनेटली इट शुड बी बिलो 3, बल्कि रादर इट शुड बी नियर टू द 2.5, लेकिन वो रही 3.5 ही। सो देयर वाज माइल्ड आप कह सकते हैं प्लेसेंटल डिस्फंक्शन विच कुड एक्सप्लेन रिड्यूस लाइकर एज वेल, और उसकी स्लो ग्रोथ भी, यानी अरेस्ट ऑफ ग्रोथ नहीं है, इट इज स्लो ग्रोथ। तो इसलिए वहां पे फिर हमने साथ ही साथ हमने फिर उसकी एंडास्टोलिक फ्लो भी करते गए जो ठीक रहा। अब बीच में सिनेरियो तो कोई भी आ सकता है ना कि 2 हफ्ते बाद इसकी एंडास्टोलिक फ्लो अब एब्सेंट हो गया, उसके 1 हफ्ते के बाद आपने फिर उसकी फ्रीक्वेंट मॉनिटरिंग शुरू कर दी, डक्टोस्पिनोसिस स्टडीज आपने कर ली, अब उसका एब्सेंट हो गया, आप क्या करोगे। सो दिस इज एन ऑन गोइंग स्ट्रक्चर डिस्कशन जिसमें पेशेंट की इंफॉर्मेशन आपको साथ के साथ बताई जा रही होती है, या फिर वैसे ही एक टेक्स्ट से रिलेटेड जो है वो एक्सक्यूज मी क्वेश्चन। मैम, एक्सक्यूज मी मैम। मैम जब हम 2 वीकली ग्रोथ स्कैन देखेंगे तो उसमें बेसिकली एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस लेस देन 5 mm हो जाए तो उसको हम लेबल करते हैं IUGR, क्योंकि हाँ जी नॉर्मली हाँ इट जी, शुड वही बी ना, मोर एब्डोमिनल देन 10 mm। सर्कमफ्रेंस सबसे पहले कम होना शुरू होएगा। तो मैडम BPD और फीमर लेंथ का रेट ऑफ ग्रोथ नॉर्मली क्या होगा, उसको हम कैसे देखेंगे? दिस यू हैव टू लुक इनटू, इसके बकायदा पूरे टेबल्स होते हैं कि इतनी जेस्टेशन पे ये होता है, और अमूमन जो लेटर जेस्टेशन में जाके जहाँ पे फीटल साइज बढ़ रहा होता है तो वहां पे जो है वहां पे BPD जो है वो दैट इंक्रीजेज एट अ रेट ऑफ 2 मिलीमीटर इन 2 वीक्स। और फीमर लेंथ को भी, फीमर लेंथ जो है वो तकरीबन 1 पॉइंट, जो फीमर लेंथ और उसका BPD का फर्क होता है वो 1.8 सेंटीमीटर होता है, यानी BPD बड़ा होता है, फीमर लेंथ कम होती है। तो ये वाली रेशो ये बरकरार रहनी चाहिए उन दोनों की, और दोनों अगर उस रेट ऑफ ग्रोथ पे चल रहे हैं तो वो स्टेयरिंग इफेक्ट है। लेकिन जो अर्ली लेट ऑनसेट IUGR है या FGR है, उसको फिर आप डिटेक्ट करते हैं बाय एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस इनिशियली। ठीक ओके है, मैम, एग्जाम में एग्जामिनर्स हमसे कितना एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें BPD, फीमर लेंथ, इनका रेट ऑफ ग्रोथ, देखो सारा अगर कुछ पता होना देखो चाहिए? अब मैं इसमें आपको बता सकती थी कि ये 32 वीक्स पे आई है और इसके अल्ट्रासाउंड पे BPD इतना है, हेड सर्कमफ्रेंस इतना है, फीमर लेंथ इतनी है, जो जो आप पूछोगे मैं वही बताऊंगी, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बताऊंगी।
तो आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या पूछना है। और उसकी फीमर लेंथ इतनी है, एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस इतना है, उसका एस्टिमेटेड फीटल वेट अगर आप पूछोगे तो वो मैं बता दूंगी कि वो कितना है। नाउ यू हैव टू कंक्लूड इट कि ये कितनी जेस्टेशन बनती है। वो मैं नहीं बताऊंगी कि फीटल बायोमेट्री जो है वो करेस्पॉन्ड करेगी 28 वीक्स को, बल्कि ये आप मुझे बताओगे कि ये कितने वीक्स की जेस्टेशन है, और ये अकॉर्डिंग टू द ग्रोथ चार्ट्स ये कितने सेंटाइल पे इसका वेट फॉल करता है। अब जो ग्रोथ चार्ट्स होते हैं वो अकॉर्डिंग टू एस्टिमेटेड फीटल वेट भी होते हैं, ग्रोथ चार्ट अकॉर्डिंग टू द एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस भी होते हैं, अकॉर्डिंग टू बीपीडी एंड फीमर लेंथ भी होते हैं अलग-अलग। लेकिन जो ज्यादा कॉमनली जो ग्रोथ चार्ट जो बनते हैं, वो जो कस्टमाइज्ड ग्रोथ चार्ट्स हैं, वो अकॉर्डिंग टू एस्टिमेटेड फीटल वेट एज ऑन अल्ट्रासाउंड। जो सबसे बेस्ट असेसमेंट फीटल वेट की होती है वो होती है एमआरआई पे, सिर्फ 3% फॉल्स पॉजिटिव रेट होता है, और जो अल्ट्रासाउंड है उस पर 10%। जो क्लिनिकल एस्टिमेशन है उस पे तो 35 से 40% तक के एरर के चांसेस होते हैं। ठीक है, Excuse me, तो ma'am. अब 9 बज चुके हैं बेटा, अब अगली क्लास शुरू होनी है, तो हियर वी स्टॉप इट। और मैडम मैडम एक क्वेश्चन पूछना था। मैडम आपने कहा मैडम सबसे ये यहाँ पे अच्छा हम पैरामीटर आपने क्या स्कैन बताया, रिपीट कराएंगे करते मैडम। हैं? बेटा एक हेलो वक्त में एक, बट दिस वुड बी द लास्ट क्वेश्चन, फिर जो चीजें रह जाएंगी वो हम अगली दफा भी डिस्कस कर सकते मैडम हैं जी। जी मैडम आप कह रही थी कि ये जो पेशेंट था आपने बताया इसको सिर्फ हम सीरियल ग्रोथ स्कैन पे मॉनिटर करेंगे, हाँ जी, जबकि हाँ जी, आपने जब दूसरा वीक बताया तो उसमें AFI और कम हो गया था, फिर तीसरे में और हाँ कम हो गया था। तो फिर हाँ क्या हम उसके मैनेजमेंट में आहिस्ता आहिस्ता, जैसे कि आप सीरियल ग्रोथ से हटके फिर और इन्वेस्टिगेशन करवाते जाएंगे, इसी तरह मॉनिटर हाँ। करेंगे, और इसको पेशेंट को हम कहाँ तक लेके जाएंगे, ये जो आप अभी डिस्कस देखो, कर रही the थी? time of delivery, as I told you, the time of delivery will be decided by the fetal parameters, and an appropriate time for delivery of established fetal growth restriction would be 37 plus weeks. But the exact time would be decided, अब डॉपलर फ्लो पे डिसाइड होगा, सारे पैरामीटर्स पे, लाइकर कितना है, उसका फीटल वेट कितना है, उसका ग्रोथ किस हिसाब से हो रही है। अरेस्ट ऑफ ग्रोथ है फॉर 2 वीक्स, फुल स्टॉप। लेकिन अगर उसकी ग्रोथ हो रही है, डॉपलर फ्लो प्रॉब्लम में नहीं है, इतना मसला नहीं हो रहा, तो देन यू कैन गो अहेड टिल 39 वीक्स ऑल्सो। बट फॉर एनी कॉम्प्रोमाइज इन द fetal situation you have to stop there and then, and preferably at around 37 plus weeks। ठीक है, अब बेटा हम यहाँ बंद कर रहे हैं क्योंकि अब मैडम अगली एक क्लास का ट्विस्ट टाइम है, है। दूसरी भी क्वेश्चन फिर मेरा से मैम। कंटिन्यू करें क्लास, मतलब दूसरी क्लास भी इसी टॉपिक आप पे करें। आप बेटा यूं कीजिए कि जो आपके क्वेश्चंस होते हैं ना, वो आप उनको भेज दें इमरान साहब को, ही विल फॉरवर्ड इट टू मी, देन आई ओके विल इट आंसर ऑन व्हाट्सएप। ओके ठीक है, वो मैडम, आपको फॉरवर्ड, आपके जितने इंडिविजुअल क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, जो जो जिसके ज़हन में आ रहे हैं, आप व्हाट्सएप कर दीजिए इमरान साहब को, और फिर इसको मैं इसका व्हाट्सएप पे ही आपको आंसर कर दूँ। मैम थैंक यू नेक्स्ट वीक आप फिर से FGR करवा लेगा फिर से, ये जी न्यू गाइडलाइन है। नेक्स्ट वीक भी हाँ, यही कंटिन्यू कर लेगा टॉपिक FGR पे। चलो मैम ठीक मेरा है, उसमें मैडम फिर ये हम टॉपिक ग्रोथ ना चार्ट्स, मुश्किल है उसमें बहुत, फिर हम ग्रोथ चार्ट्स वगैरह भी कर लेंगे, क्योंकि वो भी एक इम्पोर्टेंट चीज है। ये बुक से मैडम समझ नहीं आता, मुश्किल है बहुत। हाँ नहीं नहीं, है मुश्किल ही, डेफिनेटली आई अंडरस्टैंड। ठीक है, तो इसको नेक्स्ट टाइम भी फिर हम यही कर लेंगे। ओके थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। ओके ओके। थैंक यू मैडम।